Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we start lecture number 9 from chapter 2, frequency distribution. Frequency distribution. Now before understanding the concept of frequency distribution, we need to learn some important terms which are class limits. The variate value of the classes or groups are called the class limits. The smaller value is lower class limit and the larger value is the upper class limit. We have classes 110 to 119 and 120 to 129. ये दो क्लासेस हैं हमारे पास. देखें इसमें 110 जो है वो क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, और 119 अपर क्लास लिमिट है. इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में 120 is the lower class limit and 129 is the upper class limit. Now class boundaries. The true values which describes the actual class limits of a class or group are called class boundaries. क्लास बाउंड्रीज के लिए ये फार्मूला है लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2. हमारे पास 2 क्लासेस हैं जो कि पीछे हम बता चुके हैं, 110 टू 119 एंड 120 टू 129. अब फर्स्ट क्लास हमारे पास है 110 टू 119 और सेकंड क्लास हमारे पास है 120 से 129. तो हम क्या करेंगे, 120 लोअर लिमिट है सेकंड क्लास की, उसमें से हम माइनस करेंगे 119 को जो कि अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.5. नाउ 0.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास and 0.5 is added to the upper class limit of the class, becomes 109.5 to 119.5 and 119.5 to 129.5. These are class boundaries of these classes. Now midpoints are class marks. Midpoints are class mark is the mean of lower and upper class limits. It is denoted by X. For example, from the previous example, we have classes 110 to 119 and 119 to 120 to 129. The first class is 110 to 119. The lower class limit plus the upper class limit divided by 2. लोअर क्लास लिमिट इज़ 110 एंड अपर क्लास लिमिट इज़ 119. उन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114.5, एंड दिस इज क्लास मार्क और मिड पॉइंट फॉर दैट क्लास. नेक्स्ट इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. The difference between upper and lower class boundaries of a class or group or difference between two successive midpoints are called the size of class interval. It is denoted by H or I. From the previous example, we have classes 109.5 to 119.5 and 119.5 to 129.5. These are the class boundaries. And class interval size is equal to which is denoted by H, it is equal to 129.5 minus 119.5 is equal to 10. So H is the class interval size and it is equal to 10 in this class. Class frequency. The number of values falling in a specified class is called a class frequency or simply a frequency, and it is denoted by F. Now for example, we have classes 110 to 119 and 120 to 129 and frequencies 1 and 4. 1 and 4 are the class frequencies of these two classes. Next term is relative frequency. If the frequency of a class is divided by the sum of all frequencies is called relative frequency. The important term is ungrouped data and grouped data. Ungrouped data, the most original or fresh data which have been collected for the first time and have not gone under any statistical treatment, is called ungrouped data or raw data. For example, 4, 16, 17, 20, 15, 9, 8, these are some values. These are called ungrouped data.
Next one is group data. When the ungrouped data is arranged according to classes or groups with their corresponding frequencies, it is called group data. When ग्रुप डाटा क्या होता है, जब उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आपके पास सिंपल वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, जबकि ग्रुप डाटा में आपके पास क्लासेस होती हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है एरे डाटा। एरे या अरेंज डाटा मीन्स अरेंज डाटा और द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं, वो डाटा कहलाता है एरे डाटा। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Tabular arrangement of data into groups according to size is called frequency distribution. Data presented in the form of a frequency distribution is also called group data. Now, making a discrete frequency distribution. For example, we have question number 2.4 in your exercise. The question is, following are the number of mistakes made by 30 typists in a test, and these are the values, and make frequency distribution of the above data. Solution क्या होगा इसका? First of all, we find out the lowest and the highest value of the data. सबसे पहले हमने क्या देखना है, इन तमाम वैल्यूज़ में हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो है वो देखनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन द फर्स्ट कॉलम प्लेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं लोएस्ट से हाईएस्ट, वो फर्स्ट कॉलम में हमने लिखनी है। अब जो रिपीट हो रही हैं उनको एक ही दफ़ा लिखना है, उसको हमने जितनी दफ़ा है वो नहीं लिखना। आप जैसे 5 है रिपीट हो रहा है, तो जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने उसको एक दफ़ा लिखना है। अब 0 सबसे छोटा इसमें नंबर है, तो 0 से हमने स्टार्ट करना है, और सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10 तक हमने जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड स्टेप क्या है, इन द सेकेंड कॉलम अ वेरिएबल बार आई कॉल्ड tally bar or tally mark is put against the occurred value of the variable. After a particular value occurred 4 times, for the fifth occurrence put a line over 4 tally bars like this. For the sixth item put another tally bar leaving some space. अब इसमें थर्ड में आपको बताया जा रहा है कि हमने फिर देखना है कि जैसे 0 है, अब इस पूरे डाटा में हमने देखना है 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, तो फिर हमने वो एक बार जो है वो लगाना है वहाँ पे दूसरे कॉलम में, ठीक है, सेकंड कॉलम में हमने एक बार लगानी है। अब 1 के लिए हम देखेंगे 1 कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, तो वो उसके मुताबिक 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, वो अपने बार उतनी लगानी है, ठीक है। इसी तरह से सब जो नंबर्स हैं सब के लिए हमने वो टैली बार्स लगा लेनी है। जब 4 टैली बार्स हम लगाएंगे तो फिफ्थ वाली जो टैली बार है उसको इस तरह से ऊपर करके लगाना है, या उसको क्रॉस में लगा देते हैं और नेक्स्ट 5 के लिए फिर अगला शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक साथ उसको नहीं लिखते। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ मिस्टेक्स 0 1 2 अप टू 10 एंड देन टैली बार्स। उम्मीद है आपको समझाने से समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो हम टैली बार्स को देख के हमने उसी तरह से नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे 0 है वो 1 टाइम है डाटा के अंदर, तो वो हम 1 लिखेंगे। 1 जो है वो भी 1 टाइम आ रहा है, तो वो हमने 1 लिख लिया। इसी तरह से 2 जो है वो उसमें 2 जो है वो भी 1 टाइम है, वो हमने 1 लिख लिया। 3 जो है वो उसमें 2 टाइम आ रहा है, डाटा के अंदर हम देखेंगे तो वो 2 टाइम आ रहा है और हमने उसको 2 लिख लिया। इसी तरह से 4 देखें, 4 जो है वो 5 टाइम आ रहा है। अब 5 का आपने देखा है टैली बार किस तरह से हमने लगाया हुआ है, और आगे फिर हमने फ्रीक्वेंसी 5 नंबर उसमें लिख दिया। और 5 नंबर जो है वो 6 टाइम उसमें रिपीट हो रहा है, 6 टाइम आ रहा है, तो हमने 6 को इस तरह से 5 लिखा, फिर हमने 1 एक बार जो है साथ लिखी, ये 6 को शो कर रहा है, और आगे हमने 6 फ्रीक्वेंसी में नंबर लिख दिया।
इसी तरह से 6 जो है वो 4 टाइम आ रहा है और 7 जो है वो 3 टाइम्स है, 8 जो है वो भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है उसमें, और 9 जो है वो भी 3 टाइम आ रहा है, और 10 जो है 1 टाइम। और ये याद रखिए कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी आपकी फ्रीक्वेंसी का सम भी उतना ही आना चाहिए। आपके पास 30 टाइपिस्ट थे तो देखें आपके फ्रीक्वेंसी का सम भी 30 ही आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा ये आपको समझ आ गई होगी। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है लेकिन उसमें क्लासेस नहीं होती, उसमें एक्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे आपके पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, इसमें क्लासेस नहीं है लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो ये डाटा आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। इस किस्म का डाटा आपका क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। तो जो है आप इसके क्वेश्चन जो हैं वो होम टास्क में जो आपको दिए जाएंगे वो आपने करने। गर्ल्स, दिस इज़ योर होम टास्क टुडे। Give short answers. What is frequency distribution? Differentiate between class limits and class boundaries. Differentiate between grouped and ungrouped data. What is the size of a class interval? और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है जो आपने पढ़ा है आज, क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक है, वो आपने करना है और मुझे आपने ये असाइनमेंट जो है ये आपने ग्रुप पे, अपने ग्रुप जो है आपका उस पे सेंड करनी है। ठीक है बेटा।